Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class, grade 12, chapter 16, hydrocarbon. Today we are going to study about the electrophilic substitution reaction of benzene. Students, in our last lecture we started the reaction of benzene, in which I told you that mainly benzene give the two types of reaction. Number one, addition reaction, which we studied in our last lecture. Number two is the electrophilic substitution reaction of benzene, which we will study in this lecture, lecture number 14. First of all, student, let me tell you about the electrophilic. Electrophilic, actually, the word come from the electrophile. Exactly meaning of the electrophile is the electron lover, or you can say that electron deficient group. Okay, it may be positive or it may be neutral. If the compound or group is neutral, then it should have vacant orbitals. Okay, general introduction of the electrophilic substitution reaction. The pi electron of benzene are highly stabilized due to resonance. In our last lecture, we studied a detail about the resonance of the benzene. You know very well about the resonance of benzene and stabilization of benzene. They are not readily available for the electrophilic attack like the electrons of the alkenes. Students, in our last lecture जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के अंदर rather there are 3 double bonds, but क्योंकि उनके 3 double bonds होते हैं, they are in completely in resonance, कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो मूवमेंट में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बेंजीन को स्टेबलाइजेशन देते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. तो हमारे पास जो बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे कि अल्कीन्स के होते हैं. मेनली हमारे पास जो रिएक्शंस बेंजीन के आ रहे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि पाई बॉन्ड को ईजिली ब्रेक किया जा सके जैसा कि हम अल्कीन्स में करते हैं. अल्कीन्स में पाई बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर दिया जाता है और कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसके अंदर ऐड हो जाता है, बट बेंजीन में ऐसा नहीं होता है. बेंजीन के लिए अगर अटैक करवाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो कि आगे बेंजीन के रेजोनेंस को ब्रेक करे, बेंजीन की स्टेबलाइजेशन को डिस्टर्ब करे. Okay, so they are not really available for the electrophilic attack like the electrons of the alkenes. They do not assist in the attack of the weak electrophile. Okay, weak electrophile need the attacking group should be very strong. Okay, hence more powerful electrophiles are required for a successful attack to penetrate and break the continuous sheet of the electron clouds in benzene. Electron clouds क्योंकि continuously जो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन की रिंग के अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट कर देते हैं रेजोनेंस की वजह से, एक कंप्लीट एक स्टेबलाइजेशन बेंजीन को प्रोवाइड कर लेते हैं. तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा वो बेंजीन रिंग को ईजिली अटैक करके उसकी जो स्टेबलाइजेशन है उसको ब्रेक कर सकता है. Here we have a video, और इस वीडियो से स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में किस तरह से हो रहा है. Electrophilic aromatic substitution is a reaction that replaces one of the hydrogen atoms on benzene with a group. Before we show the arrow pushing mechanism, let's dive into the reaction flask and see what's going on in there. When benzene and bromine are mixed, they'll move around in solution by diffusion, sometimes bumping into each other. But these molecular collisions are not going to be productive. They won't cause a reaction. Bromine is simply not powerful enough, not positive enough, to make benzene react with it. However, if we add in an iron catalyst, this can associate with the bromine, building a positive charge on it. Now, when benzene bumps into this activated bromine species, it can react. One of the double bonds becomes shared in a new bond with bromine and forms a carbocation on benzene. Now, one of the bromine atoms can dissociate from the iron complex, leaving as Br-. This deprotonates the molecule, neutralizes the carbocation, and forms bromobenzene. Now, let's show this mechanism with conventional arrow pushing. Benzene uses its double bond to attack activated bromine, and the Br- that's displaced forms a new bond with iron. Now, the drive for this compound to become aromatic again is so great that we can show a spontaneous deprotonation and just write -H+ under the arrow. This reaction is general, so anytime benzene encounters an electrophile that is powerful enough, it'll open up its double bond attacking it. We can then show the electrons pushing back into the ring, and if we'd like and have an appropriate conjugate base in solution, we can use that to do a deprotonation.
This gives us our substituted aromatic ring. Now that we've looked at the general electrophilic aromatic substitution mechanism, let's look at the possible electrophiles that we can add to an aromatic ring. We already saw the addition of bromine, and equivalents of Cl+ can also be used to react benzene. This reaction is halogenation. The nitronium ion can react with benzene in the nitration reaction. This gives a nitro derivative. Sulfonation of benzene can be accomplished using sulfur trioxide in a solution of sulfuric acid. The acylium ion shown here can also be attacked by benzene. This ion has resonance with a carbocation that makes it more obvious how benzene will attack. The reaction results in the addition of an acyl group to benzene and is called Friedel-Crafts acylation. Finally, some benzene derivatives can react with carbocations. This reaction gives alkylated derivatives and is called Friedel-Crafts alkylation. Benzene is a relatively stable molecule. However, when it encounters a powerful enough electrophile, it will undergo electrophilic aromatic substitution. We've also seen the 5 major benzene derivatives that we can form by reactions with different electrophiles, but we haven't yet looked at how those electrophiles are made and the conditions under which these reactions occur. We'll do that in a specific lesson for each reaction. Thanks for watching. Okay students, now we have these 5 reactions of electrophilic substitution which we will study one by one. First is the halogenation. Halogenation means one halide group will be react with the benzene. Second, nitration, NO2 group will attack, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, and Friedel-Crafts acylation. We will study in detail one by one. Let's start from the first one, that is the halogenation. The introduction of halogen in benzene by substituting hydrogen of benzene ring is called the halogenation. Halogenation of benzene occurs with halogen X2, that may be Cl2, Br2, anything, in the presence of the catalyst iron halide FeX3. Okay, here we have a chlorination. Benzene ring reacting with the Cl2 in presence of catalyst. Catalyst is iron chloride FeCl3. We have the product, that is a chlorobenzene, and a byproduct we have obtaining the hydrogen chloride, that is a hydrochloric acid. Now we have the mechanism. Okay, before mechanism, chlorination, and here a point, chlorination and bromination are normal reaction, but fluorination is too vigorous to control. Iodination gives the poor yield. तो mainly students हम लोग लैब में जो reactions करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? Cl2 के and Br2 के reactions होते हैं, जो कि हम easily लैब में handle भी कर सकते हैं और easily हम इसको proceed कर सकते हैं. Now come to the mechanism. In step 1, formation of a chloronium ion, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द फेरिक क्लोराइड एज अ लिविस एसिड. हमारे पास रिएक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर Cl2 के जो हमारे पास लोन पेयर हैं वो अटैच हो रहे हैं विद द कैटलिस्ट, दैट इज द आयरन क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल आई थिंक अबाउट द कैटलिस्ट, द रिएक्शन जो कि हमारे रिएक्शन को प्रोसीड करता है एंड आफ्टर द रिएक्शन हमें एज इट इज़ वापस मिल जाता है. तो यहाँ पर जो हमारे पास फेरिक क्लोराइड है दैट इज एक्चुअली द कैटलिस्ट. ओके, ये हमारे पास कंपाउंड है Cl2 जिससे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास Cl2 रिएक्ट कर रहा है विद द कैटलिस्ट, आयरन क्लोराइड हमारे पास यहाँ पर है. हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाती है. इंटरमीडिएट स्टेज बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 2 Cl के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे मौजूद, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है ये ले लेगा, तो हमारे पास जो Cl यहाँ पर रह जाएगा दैट विल बी इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म. और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है तो उसके पास क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इस तरह से हमारे पास Cl2 से यू कैन से कि Cl2 मॉलिक्यूल से हमारे पास क्लोरीन पॉजिटिव आयन हमारे पास फॉर्म हो गया है विच इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इन अवर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा. बेंजीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है जो कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक कर देगा. यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास ब्रेक हो जाएगा
और यहाँ पर Cl आके इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आप लोग सोच रहे होंगे हाइड्रोजन कहाँ से है, तो हाइड्रोजन तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास जो ये रिंग है, इस रिंग में हमारे पास हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, जो कि रिंग में आपको शो नहीं किया गया, अदरवाइज हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब जब यहाँ पर ये Cl अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग का ये वाला बॉन्ड जो है हमारे पास ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके Cl आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। और स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट लेक्चर इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मैंने आपको बताया था कि बेंजीन में जो ईच कार्बन होता है कंटेनिंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट यहाँ पर अगर आप इस कार्बन पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये sp2 फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो इस इंटरमीडिएट स्टेट पे, और यू कैन से एक यू कैन से नॉट कंफर्म और नॉट कंप्लीट, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई है, जो कि हमारे पास कंफर्म नहीं है, विच इज़ नॉट स्टेबल, जो कि थोड़ी देर के लिए हमारे पास sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो गई है। अब अगर आप इस वाले कार्बन पे अगर आप ये वाला कार्बन जो है अगर आप यहाँ पर इस पे फोकस करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड तो यहाँ पे बन रहा है इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ। बट अब इस कार्बन के पास एट दिस मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन मौजूद है इस कॉर्नर पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसका एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पर ईच कार्बन शुड हैव यू नो वेरी वेल, ईच कार्बन शुड हैव द 4 बॉन्ड्स, क्योंकि अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। ओके, इसलिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा है। अब यू नो वेरी वेल कि बेंजीन में रेजोनेंस होती है कंटिन्यूसली, जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ये रेजोनेंस में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह मूवमेंट की वजह से हमारे पास चार्ज अब यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद हमारे पास चार्ज की मूवमेंट मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास ये बॉन्ड मूव होके इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास क्या होगा, चार्ज जो यहाँ पर मौजूद है वो मूव करके इस जगह पर आ जाएगा और हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पर फॉर्म है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ये अपनी जगह चेंज करके इस तरह से पोजीशन चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास प्लस चार्ज यहाँ पर है, सेकंड प्लस चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, उसके बाद हमारे पास प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो कंटिन्यूसली हमारे पास जैसे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट शो की गई है, साथ ही हमारे पास डबल बॉन्ड की मूवमेंट भी यहाँ पे हमें शो की जा रही है कि डबल बॉन्ड भी हमारे पास कंटिन्यूसली रेजोनेंस में है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में तो है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और क्लोरीन मौजूद है, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। अब हमारे पास एज यू नो, एज आपको वीडियो में भी बताया गया था, आपको लेक्चर के शुरू में बताया गया था कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ये Cl जो हमारे पास है अगर कंपेरेटिवली देखें तो ये हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद इस जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी हुई है और अनस्टेबल जो कंपाउंड बना हुआ है, इसकी थोड़ी देर रेजोनेंस के बाद Cl कंप्लीटली इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र रीजनरेट द एरोमेटिक करेक्टर ऑफ द रिंग। हमारे पास यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो आके अटैच हो जाएगा Cl के साथ। जब यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वापस ये वाला कार्बन ले लेगा। ठीक है, जब ये वापस अब कार्बन ले लेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट 4 हो जाएगी और 4 होने के बाद इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट हमने किया था बेंजीन से, जिसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया बाय द 1 क्लोरीन, द कंपाउंड नेम विल बी क्लोरोबेंजीन। अब जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है वो आके अटैच हो जाएगा इस Cl के साथ और हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमारे पास द कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड एज इट इज़ हमें आफ्टर द रिएक्शन इसी फॉर्म में मिल जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स, मैंने बहुत डिटेल में आपको हेलोजनेशन समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इन सेकंड स्टेप में हमारे पास अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का ऑन द बेंजीन रिंग, रेजोनेंस होती है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास
क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्योंकि अब ये रिएक्शन हमारे पास हैलोजन की हमने सब्स्टिट्यूशन शो किया है, इसलिए हम इसको हैलोजनेशन भी कह सकते हैं। अगर क्लोरीन के हम कर रहे हैं तो इसको क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ हैलोजनेशन ऑफ द टॉलीन. Here we have a student side chain substitution, halogenation of toluene. Let me tell you students, when alkyl benzene are treated with the chlorine or bromine in the presence of sunlight, then only the alkyl groups are substituted. ओके अब आपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, लास्ट वाले स्लाइड में देखा था कि हमारे पास क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था बेंजीन के साथ और बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन कर रहा था. बट इफ़ वी हैव अल्काइल बेंजीन तो हमारे पास जब भी हैलोजनेशन होगी तो हैलोजनेशन में सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के साथ नहीं होगी, बेंजीन रिंग के साथ नहीं होगी, बल्कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो अल्काइल ग्रुप के साथ होगी. एंड यू मे सी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हुई है तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक Cl जाके इसमें अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो इस तरह से क्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा. अगेन इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट हमारे पास मजीद सब्स्टिट्यूशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक Cl जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा दैट विल बी डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन. नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास सेम इसी तरह हो रहा है. तो हमने जो स्टार्ट किया था अल्काइल बेंजीन से, इन द लास्ट हमारे पास ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन गया है और इसको इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. इसको हम कहते हैं दैट इज़ द साइड चेन सब्स्टिट्यूशन. ये हमारे पास याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ. अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन होगा तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन होगा तो हमारे पास इस तरह का साइड चेन रिएक्शन होगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन हमारे पास अल्काइल ग्रुप की होगी, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी. ओके, that is known as the side chain substitution. Now come to the nitration, the introduction of the NO2 group. The introduction of the NO2 group in benzene by substituting the hydrogen of benzene ring is called the nitration. Same वैसा ही process होगा, हमारे पास NO2 group अटैक करेगा और हमारे पास resonance होगी और in the last हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा. ये हमारे पास रिएक्शन है स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन करवा रहे हैं. नाइट्रो ग्रुप हमारे पास कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड से आएगा. HNO3 का हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. हियर कैटलिस्ट द सल्फ्यूरिक एसिड. बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और साथ हमारे पास वाटर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड टू जनरेट द नाइट्रोनियम आयन. अब देखिए हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास हम क्या करते हैं, इन फर्स्ट स्टेप हमारे पास फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल. अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ तो हमारे पास NO2 फॉर्म हो रहा है. अब किस तरह से NO2 फॉर्म हो रहा है कि यहाँ से हमारे पास NO2 का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास HO के पास रह जाएंगे तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म में आएगा तो हमारे पास NO2 बन जाएगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन इस HO के पास चला जाएगा तो हमारे पास वाटर फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी HSO4 नेगेटिव. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट स्टेप सिर्फ हमारा तमाम सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्टेप थोड़ा चेंज होता है जिसमें हम फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की. बाकी हमारे पास तमाम आगे जो रिएक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, आगे स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास सेम होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल NO2 है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैसे ही होगा जैसे कि हैलोजनेशन में हुआ था. ये हमारे पास NO2 ग्रुप है जो कि अटैक करेगा बेंजीन रिंग के इस कार्बन के ऊपर करेगा. यहाँ से हाइड्रोजन और NO2 थोड़ी देर के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट या यू कैन से कि अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास अलग हो गया है, थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, H+ चार्ज कार्बोनियम आयन और यू कैन से कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग, इसमें रेजोनेंस होगी, डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस शो करेंगे. और उसके बाद इन द लास्ट डेफिनेटली क्योंकि NO2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो ये पुश कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन HSO4 के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेगा, कैटलिस्ट एज इट इज़ हमें वापस मिल जाएगा और हमारे पास बेंजीन रिंग के जो रेजोनेंस है वो दोबारा से बेंजीन रिंग को मिल जाएगी और हमारे पास कंपाउंड चेंज होके बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द सल्फोनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड द सल्फोनेशन. इसमें आप देख लीजिए हमारे पास क्या हो रहा है,
यहाँ हम रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का बेंजीन के साथ, ठीक है। हमारे पास SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह से भी होता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, तो हमारे पास SO3H ग्रुप आ सकता है। इसके अलावा हम इस तरह भी कर सकते हैं, सेकंड इस तरह से भी हो सकता है, अगर बेंजीन रिंग का हम रिएक्शन करवाएं विद द सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड देन वी यूज़ द sulfuric acid as a catalyst by providing the temperature that is a lower temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और SO3 ग्रुप जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मेनली सल्फोनिक ग्रुप को रिएक्ट करवाना होता है बेंजीन के साथ, ठीक है। Now come to the mechanism. When sulfuric acid alone is used, the actual electrophile in this reaction is SO3. Now you just see students, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा और यहाँ हमारे पास HSO4 नेगेटिव आयन बनेगा। मेन हमारे पास यहाँ पर दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे बेंजीन के साथ। और जब ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ तो हमारे पास इस तरह से, अगर इसको आप सिंपल SO3 करके अगर लिख लें तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ सिंपल SO3 करके यहाँ पे अटैकिंग होगी, ये वाला हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद SO3 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद हमारे पास थोड़ी सी रेजोनेंस शो होगी। रेजोनेंस शो होने के बाद यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वो रिमूव हो जाएगा और वो HSO4 के साथ अटैच होके H2SO4 बन जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि अब ये H2SO4 बन चुका है। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करेगा इस ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग तो कंफर्म हो चुकी है, रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये भी स्टेबल नहीं है। ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट करेगा इसके साथ। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ ताकि इस पे से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाए और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए, तो हमारे पास SO3H फॉर्म हो जाता है और साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द सल्फोनेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन से हमारे पास SO3H ग्रुप यानी कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो गई बाय द SO3H, ओके। नाउ कम टू द फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि तकरीबन हमारे पास स्टेप 2 से लेकर लास्ट स्टेप तक सेम होता है, सिर्फ स्टेप 1 में थोड़ा डिफरेंस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ द फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिनके नाम पे इसको फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, in benzene ring in the presence of an alkyl halide and a catalyst aluminum chloride is called the Federer-Kraft alkylation. बेंजीन रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज़ द अल्मोनियम हैलाइड। हमारे पास अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास अलग हो जाता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म आप देख लें, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं विद द कैटलिस्ट, अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद द कैटलिस्ट। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया है और ये हमारे पास जो कैटलिस्ट है जो कि इन द लास्ट रीजनरेट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अल्काइल ग्रुप जो है हमारे पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ये इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पर हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और अनस्टेबल कंपाउंड बनने के बाद थोड़ी रेजोनेंस होगी, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है उसकी मूवमेंट होगी, डबल बॉन्ड की मूवमेंट होगी और फिर उसके बाद इन द लास्ट ये वीक इलेक्ट्रोफाइल आखिर में सरेंडर करके क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा और हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे AlCl3 जो है हमारे पास एज इट इज़ जिस तरह कि हमने स्टार्टिंग में लिया था कैटलिस्ट, एज इट इज़ हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको अल्काइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होता है वो आके अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, ठीक है। नाउ कम टू द फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन असाइल ग्रुप। ये हमारे पास होता है असाइल ग्रुप जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक R अटैच होता है अल्काइल ग्रुप, इसको असाइल ग्रुप कहा जाता है।
जब ये हमारे पास रिएक्ट करता है बेंजीन में तो एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और ये रिएक्शन जो हमारे पास होता है दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द एसाइल हैलाइड। एंड एसाइल हैलाइड तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो अल्मोनियम क्लोराइड या कोई सा भी हम अल्मोनियम हैलाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, ये एसाइल ग्रुप है, साथ Cl अटैच है, इसलिए इसको एसाइल क्लोराइड कहा जा रहा है, एसिड क्लोराइड कहा जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया है एसाइल बेंजीन, ठीक है, और HCl हमारे पास यहाँ हो गया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज जो दिखाया गया है वो अल्काइल ग्रुप की जगह आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शो कर दिया गया है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ द एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन, दैट इज़ द कॉमन नेम। और जो हमारे पास इसका IUPAC नेम है दैट इज़ द मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप है। फिनाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन मौजूद है। तो मिथाइल फिनाइल, और कीटोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन अटैच है, इसलिए इसका नाम दिया गया है मिथाइल फिनाइल एंड कीटोन। नाउ कम टू द मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि सेम उसी तरह जैसे कि हमारे पास इन फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया। नाउ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इस जगह पे अटैक करेगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी, हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए रेजोनेंस होगी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म रहेगा, रेजोनेंस होगी, पॉजिटिव चार्ज मूव करता जाएगा, डबल बॉन्ड में मूव करता जाएगा, इन द लास्ट हाइड्रोजन सरेंडर कर जाएगा, हमारे पास असाइल ग्रुप बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाएगा, AlCl3 विच इज़ अ कैटलिस्ट हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा दैट इज़ द HCl। नाउ समरी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि आपको यहाँ समरी से बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। हैलोजनेशन, Cl2 के साथ रिएक्शन बेंजीन का, ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। नाइट्रेशन, बेंजीन के साथ रिएक्शन, हमारे पास कंपाउंड HNO3 है, H2SO4 कैटलिस्ट है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल NO2। सल्फोनेशन, बेंजीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का या SO3 का, बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, RCl दैट इज़ द अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज़ करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द कैटलिस्ट AlCl3 एंड एरीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास दैट इज़ द अल्काइल ग्रुप। इन द लास्ट हमारे पास बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगा हमारे पास असाइल ग्रुप के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, हमारे पास अराइल कीटोन बन जाता है और हमारे पास ये असाइल ग्रुप जो है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है। हम श्योर इस समरी से आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये 5 रिएक्शंस हैं, इनमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होती हैं, हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है। हियर इज असाइनमेंट, राइट अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, व्हाट इज सल्फोनेशन, गिव मैकेनिज्म फॉर द सल्फोनेशन इन बेंजीन and draw the structure of the following halogenium ion benzonium ion, acetophenone and acetyl chloride। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, आई एम श्योर आपको भी लगा होगा। सबसे पहले आप वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, वहाँ पर आपको एक समरी ही और यू कैन से एक बहुत बेहतरीन सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको बाकी जो मैंने आपको 1 by 1 एक एक जो रिएक्शन को मैंने आपको डिटेल में बताया है विद मैकेनिज्म, तो वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। और इन तमाम रिएक्शंस को देखने के बाद जो लास्ट में मैंने आपको समरी दी है, समरी शो किया है, समरी टेबल, उसको थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व कीजिएगा। आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जो टिप मैंने आपको दी है उससे। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।